से विदाई ले रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर विदा ले रहे हैं वाशिंगटन से। उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा, आज ही जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की विदाई की ये तस्वीरें हम आपको वाशिंगटन डीसी से सीधी दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। वाशिंगटन डीसी से सीधी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की विदाई, साथ में है उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल फेयरवेल स्पीच में भी मेलानिया ने अपनी भावपूर्ण बातें रखी थी। उन्होंने कहा था किस तरह से अमेरिका को प्राथमिकता दी गई ट्रंप के शासन में। हालांकि जिस तरह से हालिया दिन में हिंसा हुई अमेरिका में, उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी थी। Thank you very much. And we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. They worked, and they worked for you. They could have had a much easier life, but they did a fantastic job. I just want to thank all of you, everyone. I want to thank Mark Meadows, who's here, someplace right there. I want to thank Mark. But it's been something very special. We've accomplished a lot. Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. And so popular with the people, so popular with the people. In fact, honey, would you like to say a few words, please? Being your First Lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you. What else has to be said, right? But what we've done, that's true, honey, great job. What we've done has been amazing by any standard. We rebuilt the United States military. We created a new force called Space Force. That in itself would be a major achievement for a regular administration. We were not a regular administration. We took care of the vets, 91% approval rating. They've never had that before. The vets have given us the VA. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, इतिहास लिखा जा रहा, बाइडेन एक बड़ी जीत के साथ अब अमेरिका की कमान आज संभालेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर विदाई भाषण हम सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल उनके लिए अतुलनीय था। अमेरिकी फर्स्ट का जो उनका विजन था, उन्हीं को उन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन वास्तव में आप इस कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और ये विदाई विश्व के लिए किस तरह से बदलाव लाने जा रही है? संजीव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको विदाई भाषण, यहां पर फेयरवेल स्पीच है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरह से आज वो वाशिंगटन से विदाई ले रहे हैं। पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि 20 जनवरी को जब यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले ही वो वाशिंगटन छोड़ देंगे, और वही कुछ करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। साथ में फर्स्ट job numbers have been absolutely incredible. When we started, had we not been hit by the pandemic, we would have had numbers that would never have been seen. Already our numbers are the best ever. If you look at what happened until February a year ago, our numbers were at a level that nobody had ever seen before. And even now, we really built it twice. We got hit. Nobody blames us for that. The whole world got hit, and then we built it again. And now the stock market is actually substantially higher than it was at its higher point
prior to the pandemic. So it's really, you could say we built it twice. And you're going to see incredible numbers start coming in if everything is sort of left alone. Be careful. Very complex. Be careful. But you're going to see some incredible things happening. And remember us when you see these things happening, if you would. Remember us, because I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket ship up. It's a rocket ship और इसी up. खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आज इतिहास लिखा जा रहा दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में जो विदाई यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है वो भी अपने आप में इतिहास है, लेकिन ये दुनिया में किस तरह के बड़े बदलाव के संकेत हैं? जी देखिए, राष्ट्रपति बिडेन निसंदेह जो है एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का जो कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धियों को भी वो लगातार जताने की कोशिश करेंगे। लगातार वो अपनी उपलब्धियों को अपने विदाई भाषण में भी वो दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आप राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में उसमें एक गिराव देखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की जो अमेरिका की फर्स्ट की जो पॉलिसी हुआ करती थी उसकी वजह से जो पूरे विश्व में जो अमेरिका अभी गई है वो एक आत्म केंद्रित राष्ट्र के रूप में गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बाहर आ गया, ईरान न्यूक्लियर डील से भी बाहर आ गया, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आईएनएफ ट्रीटी से भी बाहर आ गया, पेरिस क्लाइमेट डील से भी बाहर आ गया, इवन की डब्ल्यूएचओ से भी उसने अपने हाथ खींच लिए, उससे बाहर आ गया। तो अमेरिका ने अपनी जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको छोड़ने का कार्य किया है राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल। बिल्कुल संजीव जी, तीन बड़े सवाल दुनिया के सामने हैं। संजीव जी, आप जब ट्रंप की विदाई हो रही है तो तीन बड़े सवाल दुनिया के सामने। पहला, कोरोना पर क्या स्टैंड होगा अमेरिका का? दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क भी उठाया ट्रंप ने, चाहे सुलेमानी को पर एक्शन की बात हो, चाहे यहां पर इजराइल और सऊदी अरब को करीब लाने की बात हो, और चाहे बार बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात जानबूझ के रखने की बात हो, ये बताते थे कि ट्रंप ने बड़े कदम उठाए जरूर अमेरिका को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए। जी, एक बात मैं निसंदेह क्रेडिट देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के ऊपर बड़ा ही सख्त रुख अपनाया। चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो आईएसआईएस प्रायोजित जो आतंकवाद किया जाता हो, आईएसआईएस का उन्होंने पूरी तरीके से सफाया कर दिया। जो एक फिजिकल टेरिटरी हुआ करती थी इराक में और सीरिया में। चलिए संजीव जी, आपको यहाँ पे रोकेंगे। हमारे साथ अविनाश कल्ला जी जुड़ गए हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है, अमेरिका की गलियों में भटके, उनकी किताब भी है जो उन्होंने चुनाव और अमेरिका से जुड़ी हुई रखी है, उनसे बात करेंगे। अविनाश जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। आज ऐतिहासिक मौका है, आपने उस चुनाव को बेहद करीब से देखा है जो अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या खास बातें हैं, 5 बड़ी बातें आप बताइए जिसको अमेरिका याद रखेगा, पूरी दुनिया याद रखेगी इस चुनाव के लहजे से। सबसे बड़ी बात जो अमेरिका में इलेक्शन में हुई कि ट्रंप ने पार्टी पार्टीजनशिप तोड़ी। जो भी उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना एक कल्ट बनाया। इतना पॉपुलर और कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ, चाहे वो विवादित ही क्यों ना हो। तो ट्रंप ने जिस प्रकार से अपना एक कल्ट बनाया और अमेरिका में बिल्कुल पॉलिटिक्स चेंज कर दी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट हमेशा से विभाजित रहे, पर उन्होंने देश को बहुत पोलराइज कर दिया। दूसरा, ट्रंप भले ही विवादों में घिरे रहे हों, पर उनका एक जनता के प्रति स्ट्रॉन्ग बेस था। वो एक इकलौते ऐसे राष्ट्रपति बने जो हार जब रहे हैं तब भी उन्होंने किसी और। अविनाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरह से रेड और ब्लू का कॉन्सेप्ट भी उनके कार्यकाल में और यहां पर मजबूत होता हुआ नजर, आपने बहुत करीबी से देखा है परिणामों में। जो डेमोक्रेटिक स्टेट माने जाते थे वो रिपब्लिकन के खाते में चले गए, जो रिपब्लिकन के थे वो यहां पर डेमोक्रेटिक के खाते में चले गए। ये डेमोग्राफी भी ट्रंप ने अपनी नीतियों से, अपने फैसलों से बदली है, आपको लगता है ऐसा? काफी हद तक बदली है। और ट्रंप ने एक चीज जो करी, उन्होंने चाइना को इतना बड़ा डीमन बना दिया, इतना बड़ा दैत्य बना के अमेरिकन पब्लिक के सामने पेश किया कि लोग, जैसे हमारे चुनाव में हम पाकिस्तान का एक मुद्दा देखते, उन्होंने उसको भी सरपास किया। तो जिस तरह आप कह रहे हैं, और ट्रंप ने एक और बड़ा डिस्टिंक्टिव रिकॉर्ड सेट किया कि आज तक कोई भी राष्ट्रपति जिसने फ्लोरिडा या ओहायो जीता है वो हमेशा व्हाइट हाउस जाता था। इस बार ठीक पलट हुआ है। ट्रंप फ्लोरिडा भी जीते, ओहायो भी जीते, लेकिन
व्हाइट हाउस नहीं पहुंच पाए। एक खास बात अविनाश जी यहां पर भारत के लहजे से कहेंगे, अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने इंडिया को जो प्रायोरिटी दी वो अब दूसरे जो नेता आएंगे, जिस तरह से बाइडेन ने भी 20 भारतवंशियों को अपनी टीम में जगह दी है, ये दबाव वो बना के चले गए हैं, ये स्थिति वो भारत की बना के चले गए हैं जो आगे भी आने वाले नेताओं को निभानी पड़ेगी। इस लिहाज से ट्रंप को खास माना जाए? बिल्कुल माना जाए, क्योंकि देखिए उन्होंने सीधे सीधे कहा चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने इंडिया को बैक करना शुरू किया। तो आज बाइडेन भी जो चाइना को दुश्मन नहीं मानते पर वो उन्हें कॉम्पिटिटर कहने लग गए हैं, और अगर चाइना से अमेरिका को compete करना है तो इंडिया को साथ लिए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। अविनाश जी, तो अब चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए, जिस ट्रंप को इतनी पॉपुलैरिटी थी, जिन्होंने इतना एग्रेसिवली कैंपेन को हैंडल किया, उसकी हार की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर जिस तरह से हिंसा हुई, मुद्दे बदल गए आखिरी समय में, यही कारण था कि ट्रंप बार बार अविश्वास जताते रहे? देखिए ये सब मुद्दे हम कह सकते हैं, अमेरिका पहले से ही विभाजित था। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि हम फ्लॉयड का इंसिडेंट का नाम लेते हैं, पर शिकागो में ऐसी घटनाएं आम है पर वो मीडिया में नहीं आ पाती थी। पर जो ट्रंप ने मेल बैलेट जो थे, जो इस बार पोस्टल बैलेट आए, ट्रंप की हार का सबसे बड़ा कारण कोविड रहा। और कोविड का मैनेजमेंट नहीं, कोविड को चलते जिस तरह से वोटिंग बदली,